Assalamualaikum students, I hope you are fine, you are doing well. Today we will discuss about malice and jealousy. It's unit number 3, manners and etiquette. Our topic is malice and jealousy and it's page number 37. Today we will discuss in detail that what is malice and what is jealousy. All you know by its name that what is malice and what is jealousy, but today we will discuss in detail that what is actually the meaning of jealousy and malice, and what is the position of malice and jealousy in Islam. What does Islam say about malice and jealousy? Is this halal or is this haram? Is this a good act or a bad act? We will discuss it today. Jealousy is a negative emotion. Jealousy is a negative emotion. Negative emotion means manfi jazba. Because of it, a person burns within himself and envies another person's wealth, fame, good reputation, high position, good job or beauty. He wonders why this person has it and he does not. In Arabic, the one who is jealous is called hasid, and the person envied is called a mahsood. Okay, what are they saying in this para? They are basically saying कि jealousy, जलन जो है एक मनफी जज्बा है. इससे इंसान क्या करता है, बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से इंसान किसी ऐसे शख्स को अपना मुखालिफ, अपना दुश्मन मान लेता है जिसके पास ज़्यादा दौलत होती है, अच्छी रेपुटेशन होती है, उसके पास हाई पोजीशन होती है, अच्छी जॉब होती है, या फिर वो बहुत खूबसूरत होता है. वो इंसान हैरान होता है, परेशान होता है, गुस्सा करता है कि भाई मेरे पास ये क्यों नहीं है और फलाने बंदे के पास क्यों है. इस वजह से वो क्या होता है, उसका दुश्मन बनता है. ही स्टार्ट जेलसिंग दैट पर्सन. इन अरबिक, the person who is jealous, who is feeling jealousy, is called hasid, and the other person from whom the person is getting jealous is mahsood. Okay, this is the meaning of the first para. Now we will discuss the second para. The person who is jealous lives hating the object of his envy day and night, keeps plotting and planning how to hurt him or what he can do to make that person lose that blessing bestowed by Allah the Almighty. जो बंदा जेलस होता है वो दिन रात बस एक ही बात सोचता है, वो दिन रात एक ही प्लान्स बनाता है कि किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ करूं कि वो जो अल्लाह ताला ने उस दूसरे शख्स को वो इनायत की है, उस पर वो उसको नेमत दी है, तो वो किसी तरह वो ख़त्म हो जाए भाई, और ख़त्म होकर मुझे मिल जाए, बस उससे ना मिले मुझे मिल जाए. दिस इज़ कॉल्ड जेलसी, दिस इज़ कॉल्ड मैलिस, दिस इज़ कॉल्ड जेलसी. Okay, next, to achieve his evil ends he does not hesitate to cause his material, mental or bodily harm. In fact he feels very happy in doing so. वो कहते हैं कि इंसान जेलसी में आकर, जलन में आकर इतना अंधा हो जाता है, मतलब उसको कुछ नज़र नहीं आता, कांट सी एनीथिंग. वो बस चाहता है कि किसी तरह उस दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाऊं, चाहे वो उसको बॉडीली हार्म हो, चाहे उसको मेंटली हार्म हो, मतलब कुछ भी हो उसे, और बस वो चीज़ उसके पास ना रहे, वो मेरे पास आ जाए. और इवन कि वो ये सब करने के बाद ही फील्स हैप्पी, he feels very happy in doing so, but he does not realize how great a sin he is committing, for which he will earn the worst of punishment from Allah the Almighty in this world and the hereafter. लेकिन उसको ये नहीं पता होता, उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जो वो ये सब कर रहा है, जो दूसरे शख्स को वो नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे शख्स के साथ वो ज़्यादती कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको इसकी कितनी बड़ी सज़ा देंगे. वो असल में क्या कर रहा है, ही इज़ कमिटिंग अ ग्रेट सिन, वो बहुत बड़ा गुनाह अपने ज़िम्मे ले रहा है, और इसकी सज़ा अल्लाह ताला, अल्लाह अलमाइटी इज़ सेइंग, आई विल पनिश हिम इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर. इस ज़िंदगी में भी और इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी में भी मैं उसे क्या करूँगा, आई विल पनिश हिम.
Okay. He has warned the people of very dreadful punishments in the afterlife for those sinners who cause mental and physical harm to their fellow human beings, practice cruelty, humiliate them and even murder them and feel very happy about it. वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को वार्न भी किया है कि भाई जो ऐसे काम करेंगे, जो लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने साथी ह्यूमन बींग्स, दे हार्म देयर फेलो ह्यूमन बींग्स. If we harm our fellow human beings, Allah the Almighty will punish us in this life and the life hereafter. अगर हम वो कह रहे हैं if they practice cruelty, humiliate them and even murder them. Some people even murder their fellow human beings just because of jealousy, just because they feel jealousy that person has the thing why I don't have that thing. Because of this they murder their fellow human beings. And okay, next line. And even if actual harm is not done, even if envy and malice have only been harbored in the heart, all his good deeds are destroyed. A hadith of the Holy Prophet हज़रत अबू हुरैरा से वो कह रहे हैं कि अगर उसने चलो कोई ऐसा नुकसान नहीं भी पहुंचाया, जस्ट ही फील जेलसी, उसे कोई ऐसा ख़ास उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, तब भी उसका इंसान की सारी जो अच्छी नेकियां होंगी मतलब जो भी उसके अच्छे अमाल होंगे वो सारे क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस को हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है. हज़रत अबू हुरैरा सेज़, Avoid the disease of jealousy as it combusts good deeds just as fire devours wood. वो कहते हैं कि जेलसी को अवॉइड करें क्योंकि ये एक बीमारी है. जेलसी इज़ अ डिज़ीज़, ये एक बीमारी है जो इंसान के अच्छे अमालों को, उसके अच्छे अमालों को ऐसे खा जाती है जैसे लकड़ी में आग लगने के बाद लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, भस्म हो जाती है बिल्कुल. सेम बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, इंसान के अच्छे अमाल, उसकी अच्छी जितने भी उसने अच्छे काम किए होते हैं, ऑल कम्बस्ट गुड डीड्स जस्ट एज फायर डिवर्स वुड. जैसे कि लकड़ी में आग लगने के बाद लकड़ी में कुछ नहीं बचता, वो खाक बन जाती है, राख बन जाती है. ऐसे ही इंसान के जेलसी के बाद इंसान के सारे अमाल को ऐसे ही आग लग जाती है और कुछ भी नहीं बचता. Envy endangers our religion and faith as a hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो कह रहे हैं कि ये जो है मुखालफत है, ये जो भी है, इससे क्या होता है कि हमारा जो ईमान है वो भी ख़तरे में पड़ जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी बैड थिंग. Okay, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the disease of envy and malice is one which shaves off not a person's hair but his religious beliefs and faith. And it is from Tirmizi and this hadith is from Abu Dawud. What is he saying now? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि जो ये डिज़ीज़ है मैलिस की, जो जेलसी की जो ये बीमारी है, ये क्या होता है कि ये इंसान के खा जाती है. इंसान के सारे बाल जो होते हैं उनको नहीं उड़ाते, मतलब वो शेव ऑफ नॉट हिज हेयर्स, उसके बालों को नहीं, मतलब वो शेव कर देती है उसके सारे अच्छे अमालों को, उसके रिलीजियस भी, उसका ईमान, हमारा ईमान ही ख़तरे में पड़ जाता है जेलसी के बाद. स्टूडेंट्स, हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाता है. हमारा ईमान ऐसे चला जाता है जैसे शेव करने के बाद हमारे बाल चले जाते हैं, जैसे दाढ़ी चली जाती है. वट एवर यू डू, इसी तरह हमारे अमाल इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जेलसी. इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग फॉर आवर बिलीफ, फॉर आवर रिलीजियस फेथ्स. Okay. Malice is a type of jealousy. It actually means hatred. When a person is jealous, it is because the person he envies has some blessing from Allah the Almighty. But if the person nourishes hatred and bears enmity for no reason, it is malice. Detesting a fellow human being for no reason and bearing enmity in behavior is not appropriate for a true Muslim. वो कह रहे हैं मैलिसी भी एक जेलसी की टाइप है, बट इन मैलिस में पता है क्या होता है,
jealousy में we feel jealousy, a person feels jealousy because the other person having some wealth, fame, good reputation. But in malice we feel jealousy without any reason. That person have not anything, मतलब he is just like us, उसके पास कोई ऐसी ख़ास नेमत नहीं है, but because फिर भी हम उससे क्या करते हैं, हेट्रेड, हम उससे नफ़रत महसूस करते हैं। ये वो कहना है कि एक अच्छे मुसलमान, एक ट्रू मुस्लिम को ये अप्रोप्रिएट नहीं है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ ट्रू मुस्लिम। इफ़ यू आर ट्रू मुस्लिम, इफ़ यू आर a good person, if we are a good Muslim, this is not the type of our work, this is not our type of work. Jealousy, malice, it's actually these things destroys a person's personality, this destroys his character. मतलब अगर हम ऐसे करते हैं, दूसरे लोगों को जब पता चलता है ना इस बारे में, तो वो हमारे करेक्टर, हमारे पर्सनैलिटी के बारे में मशकूक हो जाते हैं। हम कहते हैं पता नहीं है किस किस्म का बंदा है, वी डोंट नो हाउ का विच काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, मतलब बहुत अजीब हमें लगता है। इसलिए इसी तरह आप अगर क्लास में हैं, डोंट फील जेलसी टू विद योर फेलो स्टूडेंट्स। आई सी इन द classes that students feel jealousy that this student got highest marks, I got lowest marks, why I have one number less than him, less than her. This is called, even this is called jealousy. Healthy competition is allowed, but कंपटीशन ही हो, इस तरह नहीं हो कि आप उससे जेलस फील करना शुरू कर दें, आप लड़ना शुरू कर दें कि नहीं टीचर उसके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, वाई आई डोंट गॉट दैट नंबर, वाई आई डोंट हैव नंबर्स लाइक हिम, लाइक हर। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट अलाउड। आपने भी पढ़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज अबाउट जेलसी दैट जेलसी बर्न्स द गुड डीड्स लाइक डिवर्स फायर डिवर्स वुड। जैसे लकड़ी को आग लगने के बाद सब कुछ राख हो जाता है, वैसे ही आफ्टर द जेलसी हमारे सारे अमाल ऐसे ही बर्न हो जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बट आर good deeds burnt like fire towards wood. Okay, this is your today's lecture. Inshallah, in the next video I will tell you about the question answer. I will mark the question answers of this chapter and we will discuss further that what is malice and what is jealousy. ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड follow the SOPs by the government. Always wash your hands before you start eating, and don't go outside of the house without your mother's permission. Okay, take care. Allah Hafiz.